Welcome to my channel. Let's make learning English easy. I'm your English teacher. I hold a bachelor in education as well as I hold a master degree in linguistics, which is a scientific study of any language. In today's video, we are going to learn quotients word. So without any further ado, let's dive into the topic. Quotient words or WH family words. It is very important to learn about quotient word if you are a grammar student or wanted to learn English language. Why? Because quotient words are the words used for asking questions. Yes, सवाल पूछने वाले शब्द. इन वर्ड्स के यूज से ही आप सवाल को पूछ सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में. हर एक लैंग्वेज की अपनी एक क्वेश्चन वर्ड होती है. जिस तरह इंग्लिश की क्वेश्चन वर्ड के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल्ड में. WH फैमिली वर्ड्स. जी हाँ, क्वेश्चन वर्ड को हम WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं. लेट्स नो द रीजन. नाउ लुक ऑल दिस क्वेश्चन वर्ड. हु, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हेन, whose. What you can see in common? WH. Yes, the starting first two letter is starting with WH and that is the reason it is included in WH family words. Yes, because it starts with the letter WH. Now, though there are other question word like how many, how much, which does not start with WH, but they are considered as exception. Now the first question word is what that we are going to learn here. Now what is used to refer to specific information. Yes, किसी भी चीज़ के बारे में particular जानकारी निकालने के लिए we will use the question word what. I want to know the thing. Let's understand it with some example. What is your name? What is her favorite color? What is the time? इन सारे सेंटेंस में वी आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड व्हाट. लेट्स डाइव इनटू अनदर क्वेश्चन वर्ड दैट इज हु. हु इज ओनली यूज व्हेन रेफरिंग टू पीपल. मतलब हु का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी इंसान के बारे में जानना हो. ठीक है, सो हु को हम हमेशा इंसान से या पीपल से एसोसिएट करते हैं. I want to know the person. चलिए, let's understand it with example. Who is the best football player in the world? Who are your best friends? Who is that strange guy over there? अगर ध्यान से अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ हम किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, पीपल के बारे में जानना चाह रहे हैं. इसीलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ करते हैं. सो वेन एवर यू नीड और इंक्वायर अबाउट अ पर्सन यू विल ऑलवेज यूज द क्वेश्चन वर्ड हु. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अदर क्वेश्चन वर्ड वेयर. वेयर इज यूज व्हेन रेफरिंग टू अ प्लेस और लोकेशन. आई वॉन्ट टू नो द प्लेस. जब हम किसी प्लेस या लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तब हम क्वेश्चन वर्ड वेयर का यूज़ करते हैं. सो हमेशा दिमाग में आप याद रखें प्लेस और लोकेशन. हेयर कम्स योर क्वेश्चन वर्ड वेयर. वेयर इज़ द लाइब्रेरी, वेयर डू यू लिव, वेयर आर माई शूज. नाउ द क्वेश्चन वर्ड व्हेन. व्हेन इज़ यूज टू रेफर टू अ टाइम और एन ओकेजन. जब किसी भी टाइम या ओकेजन रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम क्वेश्चन वर्ड व्हेन का यूज़ करते हैं. आई वॉन्ट टू नो द टाइम. ठीक है, when do the shops open? When is his birthday? When are we going to finish? The next question word is why. Why is used to obtain an explanation or a reason. I want to know the reason. अगर आपको किसी भी चीज़ के होने की वजह का पता लगाना हो तब हम क्वेश्चन वर्ड वाई को यूज़ करते हैं. सो वेन एवर यू नीड एन एक्सप्लेनेशन और यू वॉन्ट टू नो अबाउट द रीज़न you are always going to use the question word why. Why do we need a nanny? Now here again we want to know the reason of hiring a nanny. Why are they always late? Here also we want to know the reason of being late. Why does he complain all the time? Again we want to know the reason for his all-time complaint, right?
So, why question is always used to obtain an explanation or a reason. So, कभी भी explanation या reason आपको चाहिए होता है तो आप हमेशा ही question word why का use करते हैं. तो ये बहुत ही easy है. Next time जब भी आप use करें why तो हमेशा याद रहे it is always used for explanation or a reason. Normally the response of why begins with because. Now comes the question word which is used when a choice needs to be made. I want to know the thing between alternative. जब आपके पास चॉइस दी जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 किताबें रखी है, इसके 20 आपको चॉइस दी जाती है कि कौन सी किताब आप लोगे, तब आप क्वेश्चन वर्ड विच का यूज़ करते हैं. सो क्वेश्चन वर्ड विच का यूज़ हमेशा ऑल्टरनेटिव या चॉइसेस 2 चीज़ों के बीच करने के लिए की जाती है. Which dish do you order, the pizza or the pasta? Which day do you prefer for a meeting, today or tomorrow? Which is better, this one or that one? अगर इन सारे sentences को हम ध्यान से देखें then we'll come to know that which is used to make choices, right? पहले sentence में हमें choice बनाना है पिज्ज़ा और पास्ता के बीच. सेकेंड सेंटेंस में हमें चॉइस बनाना है आज या कल के बीच. और थर्ड में है वन और दैट वन के बीच. मीन्स इन तीनों सेंटेंसेस में हमें चॉइसेस बनानी है. सो वेन एवर यू नीड टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू चॉइस देन वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द क्वेश्चन वर्ड विच. Hope you understood it. Now let's move on to another question word, that is how. How is used to describe the manner that something is done. जब हम मैनर के बारे में आते हैं ना, किस चीज़ को किस प्रकार से किया गया है, किस तरह से किया गया है, जब उस रिलेटेड हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है देन वी ऑलवेज यूज द क्वेश्चन वर्ड हाउ. आई वॉन्ट टू नो द वे. ओके, हमें तरीका पता करना होता है कौन सी चीज़ें किस तरह से की गई है. हाउ डू यू कुक लजानिया. नाउ यहाँ पर हाउ डू यू कुक, यहाँ पर हमें प्रोसेस के बारे में जानना है, किस तरह से यह डिश बनाई गई है. हाउ डज ही नो द आंसर. नाउ ही वॉन्ट्स टू नो दैट उसे आंसर किस तरह से पता चले. हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश क्विकली. नाउ यहाँ पर भी हमको पता करना है किस तरह से हम इंग्लिश जल्द से जल्द सीख सकते हैं. वैसे तो इसकी आंसर है, क्या आंसर है इसकी? आंसर है सब्सक्राइब लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल, जहां आपको इंग्लिश मिलती है सीखने बड़े आसान तरीके से. विथ हाउ देयर आर नंबर ऑफ अदर एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड इन क्वेश्चन. तो पहले हम हाउ को फिर से एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे. हाउ इज यूज टू डिस्क्राइब द मैनर दैट समथिंग इज डन. हमेशा याद रखना है किस तरह से, किस मैनर से कोई चीज़ की गई हो, उस रिलेटेड अगर जानकारी हासिल करनी हो तो हम क्वेश्चन वर्ड हाउ का यूज़ करते हैं. वैसे हाउ के साथ हम अदर एक्सप्रेशन का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाउ मच रिफर्स टू अ क्वांटिटी और अ प्राइस अनकाउंटेबल नाउन. इसे मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि मच का यूज़ हम तब करते हैं, उन चीज़ों के लिए करते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते. जी हाँ, जिन्हें हम उंगलियों पे गिन नहीं सकते या ऐसे भी गिन नहीं सकते, उसके लिए हम मच का यूज़ करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, नाउन्स जिन्हें गिना ना जा सके. हाउ मच टाइम डू यू हैव टू फिनिश द टेस्ट. हाउ मच इज़ द जैकेट ऑन डिस्प्ले इन द विंडो. हाउ मच मनी विल आई नीड. यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों में हम क्या पूछ रहे हैं, क्वांटिटी या प्राइस, ठीक है. इज द जैकेट ऑन डिस्प्ले इन द विंडो. हाउ मच, कितना दाम है, कितना प्राइस है उस जैकेट का जो कि विंडो पे टंगी हुई है, कितना पैसा मुझे चाहिए होगा. सो वेन एवर वी रिफर टू अ क्वांटिटी और अ प्राइस एंड दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, we always use the question word how much. Okay, always remember that the question word how much is always used to refer to a quantity or a price. अगर आपको question related to quantity or a price जानना हो तो आप always use करेंगे the question word how much. How much time do you have to finish the test? How much is the jacket on display in the window? How much money will I need? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लेट्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी चैनल. And please do share your valuable feedback related to this video in the comment section. चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी की तरफ. नाउ यहाँ मेनी का यूज़ तब किया जाता है जब कोई भी चीज़ या क्वांटिटी जो होती है वो काउंटेबल हो, उसे हम गिन सकते हैं, ठीक है.
How many days are there in April? Now we know how many days are there. We can count it, right? How many people live in this city? We can count it as well. How many brothers and sisters do you have? That is also countable, right? So whenever we need to ask question, and that also refers to a quantity, ठीक है? How much का भी हम use करते हैं to ask question referring to a quantity, right? और हाउ मेनी का भी यूज़ हम उसके लिए ही कर रहे हैं, पर डिफरेंस याद करना है कि हाउ मच का यूज़ हम तब करते हैं जब वो क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन हो, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। और हाउ मेनी का यूज़ हम क्वांटिटी उस क्वांटिटी के लिए करते हैं जो कि काउंटेबल हो। हमेशा याद रखिएगा, मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए और मेनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए। इफ़ दिस थिंग यू आर रिमेंबरिंग, यू विल नेवर मेक मिस्टेक अगेन वाइल यूजिंग हाउ मेनी एंड हाउ मच, राइट। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है तो मैं इसे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी। So in my next video we are going to do worksheet on question word so that you don't forget about question word anytime. So hope you all enjoyed this video. In case if you like and enjoy this video, please do like, share, subscribe. Let's Make Learning English Easy channel and share your valuable